مسلمان سے جہاں فاضلہ کچھ بارڈر ملٹری پولیس کی گنڈا گردی کے خلاف تونسا شریف کلمہ چوک پر متاثرین کا احتجاج کیا گیا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کے دورہ فاضلہ کچھ کے موقع پر مقتول کے وارثہ اور خواتین کی بی ایم پی نے بے عزتی کی۔ وزیر اعلیٰ کو ملنے سے روکنے پر خواتین کو گھسیٹتے رہے کیونکہ بی ایم پی کی کمانڈنٹ کا پول کھلتا تھا۔ احتجاج میں سابق چیئرمین اسلم بزدار، ذوالفقار بلوچ سمیت عوام نے شرکت کی، جبکہ سابق چیئرمین اسلم بزدار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں بی ایم پی کی گنڈا گردی اور بلوچی روایات کا کھلم کھلا شدید مزاحمت کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے ایک بار نہیں 1000 بار جیل بھیجو اور 1000 FIR دو، ہم اس رویے کے لیے احتجاج جاری رکھیں گے۔ مزید اسلم بزدار، ذوالفقار بلوچ کا کیا کہنا تھا، اس رپورٹ میں ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں اور زمین آسمان کا مالک ہے، میرے بھائیوں دوستوں، اتفاق سے میں آج آیا ہوں یہ نوجوانوں کو جذبات کو دیکھ کر مجبوراً آج مجھے اپنے خلاف ایک اور FIR کاٹنے پڑ رہا ہے۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں، کل جو زیادتی ہوئی اس کی تمام تر ذمہ داریاں میں CM پنجاب عثمان بزدار پر ڈالتا ہوں اور اس کے بعد کمشنر ڈیرہ غازی خان اور DC ڈیرہ غازی خان، PA ڈیرہ غازی خان پر ڈالتا ہوں۔ پوچھے کیوں اس لیے جناب والا PFP پولیٹیکل ایجنٹ PFP کے ایک سپاہی کے باتیں کام کر رہا ہے، وہ پینت خان بزدار کے باتیں کام کر رہا ہے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان پینت خان جو کہ بلوچ چلوگی کا ایک سپاہی ہے، اس کے نیچے کام کر رہا ہے۔ عثمان بزدار صاحب قومیں ترائیاں بننے سے نہیں بنتے ہیں، قومیں سڑکیں بننے سے نہیں بنتے ہیں، قومیں بلڈوزر دینے سے نہیں بنتے۔ عثمان بزدار صاحب اب اگر لیڈر بننا ہے قوم کو انصاف دو، ہم قوم کو انصاف دو۔ سب سے بڑا ناانصافی تو یہ ہے ہمارے علاقے میں PFP کے اوپر رسالدار، جبےدار، جبےدار، نابے جبےدار ایک سپاہی کے اندر کام کر رہے ہیں۔ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے پینت خان سے، بے شک پینت خان اچھا آدمی ہے، لیکن پینت خان کو جو اختیار دیے گئے یہ ناانصافی ہے، یہ نسل کشی ہے۔ کم از کم 100 آدمی اشتہاریاں ٹریبل ایریا میں، 100 آدمی تمام ترین PFP سرداروں نے پناہ دیے ہوئے ہیں۔ میں شدید مذمت کرتا ہوں، تمام تر قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، مظلوموں کو انصاف دیا جائے، ورنہ یہ احتجاج کا سلسلہ رکے گا نہیں، اب بڑھے گا۔ اب مجھے آپ ایک بار نہیں 1000 بار جیل بھیجو، ایک FIR نہیں 1000 FIR میرے خلاف کر رہے ہو۔ جب تک زندہ ہوں بولتا رہوں گا، حق اور سچ کی بات کہتا رہوں گا۔ لوگوں کو انصاف چاہیے، عثمان بزدار لیڈر بننا ہے تو انصاف انصاف انصاف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا فاضلہ کا دورہ تھا، تو وہاں کچھ خواتین کے کچھ مسائل تھے، وہ ان سے ملنا چاہتی تھی، لیکن PFP فاضلہ کے اہلکاروں نے خواتین کی جو بے حرمتی کی اور انسانی حقوق کی جو وائلیشن کی، بلوچ روایات کی جو پامالی کی، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ PFP کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اس کا وقوع کچھ اس طرح ہے کہ 2 سال پہلے فاضلہ کچھ کے علاقے میں کی ایک بستی ہے کالی مار، تو وہاں ایک بزدار کو قتل کیا گیا۔ 2 سال گزرنے کے باوجود PFP نے اس قاتلوں کو آج تک گرفتار نہیں کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے، جہاں حاجی پور میں قتل کیس کی تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق نسیم بی بی نامی خاتون نے اپنے وکیل غلام محی الدین ایڈوکیٹ کے ذریعے مقامی عدالت میں درخواست گزاری کی۔ اس کے بھائی حاجی ارشد کو نسیم بی بی کے بھائی نے زہر دے کر
اور تشद्दुद करके कत्ल किया, लिहाजा इसकी कब्र कुशाई कराई जाए और वजह मौत का तयन किया जाए, जिस पर आज इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हाजीपुर के मकामी कब्रिस्तान में कब्र कुशाई की गई। जबकि कब्र कुशाई के वक्त पर तमाम तर इंतजाम टाउन कमेटी हाजीपुर के सेक्रेटरी राना खलील अहमद ने किए। कब्र कुशाई के जरिए से मकतूल की डेड बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के नमूने लिए गए, जो कि बतौर नमूना लेबॉरेटरी में भेजे गए, जिससे मकतूल की वजह मौत का तयन किया जा सकेगा। रिपोर्टर मोहम्मद बख्श आसी, राजनपुर, केसी न्यूज़। शामिल करते हैं शाहजमाल से, जहां गवर्नमेंट हाई स्कूल उस्मान कोरिया में भी वजीर आजम इमरान खान की मुहिम पाकिस्तान ग्रीन एंड क्लीन के तहत सीनियर हेड मास्टर मलिक सजाद बापा, उस्ताज़ा और दीगर अमले की तरफ से शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। मजीद जानते हैं मियां अकील से। जी अकील, आगाह कीजिएगा। जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल उस्मान कोरिया के सीनियर हेड मास्टर मलिक सजाद बापा ने स्कूल टीचर्स और अमले के साथ मिलकर वजीर आजम इमरान खान के प्रोग्राम ग्रीन एंड क्लीन के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज करके स्कूल में पौधे लगाए और कहा कि दरख्त न सिर्फ सदका जारिया बल्कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील है, फिजाई आलूदगी को कम करने का बेहतरीन जरिया भी है। इन दरख्तों से हमें ऑक्सीजन हासिल होती है, जो इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान भर के तमाम तालीमी इदारों, तालिब इल्मों और असातिज़ा को भी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और सबको चाहिए कि वे अपने स्कूल में पौधे लगाएं, ताकि हमारे स्कूल और हमारे मुल्क की फिजा आलूदगी से पाक हो जाए और हमारा मुल्क पाकिस्तान सरसब्ज़ और शादाब नजर आए। जी तो नाजरीन, आपको बताते चले, हबदारू होटल में 12 साल बच्चे के साथ ज्यादती करने वाले मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। SHO हाइट अब्दुल हक मोसियानी ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि SHO हाइट अब्दुल हक मोसियानी ने केसी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ नूरुल्लाह बजनोजो से बात करते हुए कहा कि मुलजिम के टेस्ट करवाए जाएंगे और बच्चे के भी DNA टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके बाद मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और केसी न्यूज़ को FIR की कॉपी भी मिल गई है। इसमें मुलजिम के ऊपर 3 दफात लगे हैं, इसमें 337, 377, 34 शामिल हैं और मासूम बच्चे के गरीब वालिदैन ने वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान वजीर बल्दियात, सरदार सालेह मोहम्मद बोतानी IG बलोचिस्तान और SSP लसमेला से मुतालबा किया है हमें इंसाफ फराहम किया जाए और मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मैं एक गरीब इंसान हूँ और मेरे बच्चे के इलाज के लिए बलोचिस्तान हुकूमत माली इमदाद फराहम करे। रिपोर्टर नूरुल्लाह बजनोजो, केसी न्यूज़, हब चौकी, लसमेला। कमाल को ये वज़ीर आला का हल्का है वाली रियासत है, उसका वैसे भी जिम्मेदारी है कि ऐसे मजलूमों का मदद करे। DPO परवेज़ को भी हम अपील करते हैं कि इसका सख्त नोटिस ले ले कि हर आए रोज़ हर महीने हर 2 महीने ऐसे वारदात होते हैं। इधर मौला बख्श का बेटा मीरू, जिसने इस लड़के के साथ नाजायज़ किया है, ज़्यादती करने के बाद इसके ऊपर तेज़ाब छिड़का है। वो 3 लड़के थे, एक का नाम तो मीरू है, उनको जाना है, 2 को देख के पहचानेंगे। और हम अपील करते हैं, कर्नल लसवेला को भी अपील करते हैं कि हम इन गरीबों का मदद करें और ऐसे जुल्म ज़्यादतियों को रोका जाए, और नहीं तो इनके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे, रोड बंद करेंगे। जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे हम रोड नहीं खोलेंगे। शामिल करते हैं घारों से, जहां शेख टाले के करीब खुदा बख्श चांडियो बल्द अल्लाह डानो चांडियो की लाश मिली। लाश को शेख ज़ैद अस्पताल मीरपुर साकरो मुंतकिल कर दिया गया। नामालूम अफराद ने मकतूल को 5 गोलियां मारी गईं। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि मकतूल को किसने कत्ल किया। रिपोर्टर जवेद चांडियो, केसी न्यूज़, घारो। खबर शामिल करते हैं शाहजमाल के नवाही इलाके गदपुर से, जहां बुनियादी मरकज़ सेहत उत्तरासंदेला में हैरत अंगेज इंकशाफात। खाकरूब डॉक्टर बन गया। तफसीलात के मुताबिक बुनियादी मरकज़ सेहत उत्तरासंदेला में डॉक्टर्स डिस्पेंसर्स कई माह से गायब। खाकरूब को मरीजों को चेक करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मरीज परेशान, सुबह सवेरे आने वाले मरीज कई घंटों तक मसीहों की राह तकते तकते बेयारो मददगार वापसी लौट जाने पर मजबूर हैं। अस्पताल का अमला मिली भगत से अद्वयात फरोख्त करने का भी इंकशाफ किया। अद्वयात की डिमांड पर मरीजों को धमकियां देने लगे।
जबकि इंतजामिया की अदम दिलचस्पी अवामी मसाइल के बढ़ने का सबब बन चुकी है। लोग नून लीग की हुकूमत में मुयस्सर आने वाली सहूलियात को याद करने लगे हैं। एलए इलाका ने CEO हेल्थ मुजफ्फरगढ़ से अस्पताल में अमला की हाजिरी को यकीनी बनाने, अदवायात की फराहमी समेत दीगर मामलात को फी अल-फौर हल करने का मुतालबा किया। एलए इलाका का कहना था कि अगर अस्पताल में अदवायात की फराहमी को यकीनी ना बनाया गया तो हम जिली इंतजामिया और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ अस्पताल के सामने भरपूर एहतजाज करेंगे। रिपोर्टर मियां मोहम्मद अकील, KC न्यूज़, शाहजमाल। खबर शामिल करते हैं हफ्सक्रान से, जहां जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सरपरस्त आला JUI खिज़दार के ज़िली अमीर और साबिक वज़ीर हज़रत मौलाना साईं कमरुद्दीन जामिया अनवर इमान सकरान अहमद जामिया के देर हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम की इयादत की। इस मौके पर JUI तहसील खिज़दार के नाइब अमीर मौलाना महमूदुल हसन कमर, जामिया मदीन ओतल के मदीर मौलाना अब्दुल हमीद आरिफ और कारी कलीमुल्लाह सकरान वाले मौजूद थे। रिपोर्टर सईद मरी, KC न्यूज़, हफ्सक्रान। पर शामिल करते हैं हमारे मोहम्मदपुर दीवान के रिपोर्टर राना महबूब हुसैन चन्नट से। नाजरीन, हम आपको बताते चले कि कोटला रबायत तानूरपुर मंजोवाला रोड जो कि इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। ये रोड बड़ी आबादी पर मुश्तमिल है, काफी आमदोरफ्त रहती है, लोगों का गुजरना महाल हो चुका है, सियासी नुमाइंदों की अदम तवज्जो का शिकार है। जबकि लोगों ने कहा है कि सियासी नुमाइंदे इलेक्शन के वक्त झूठे वादे करके गायब हो जाते हैं। हम आला काम बाला से पुरजोर अपील करते हैं कि इस रोड को बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं शाहजमाल से मियां मोहम्मद अकील की, जहां सीवरेज का निज़ाम दरम बरम, गंदे पानी के गटर उबलने लगे, मेन बाजार और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। जबकि दूसरी तरफ शाहजमाल टाउन कमेटी की नाअहली के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, आमदोरफ्त में दुकानदारों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। टाउन कमेटी का माहाना फंड्स अफसरों की शाखर्चियों पर ज़ाया होने लगा। टाउन कमेटी में सिर्फ 1-2 चौकीदारों के सिवा बाकी अमला गायब है। चीफ ऑफिसर की शक्ल तक किसी ने नहीं देखी, जिसकी वजह से शाहजमाल शहर की हालत ज़ार हो गई है। शहरियों ने इंतजामिया की नाम नेहाद कारकर्दगी पर कहा कि शाहजमाल भर में अरसा दराज से मेन रोड और गली मोहल्लों में गटरों की सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से गटर उबलने लगते हैं। शहरी अपनी मदद आप के तहत गटरों का गंदा पानी निकलवाने में मसरूफ हैं, जिस पर शहरियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान, साजिद जफर डाल और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी नाज़रीन, आपको बताते चले मिठियानी से असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा फिरोज़ अब्दुल गफूर दामर टाउन कमेटी मिठियानी के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होने के बाद टाउन कमेटी की आवाम को बुनियादी मसाइल पर टाउन के अंदर सफाई का काम तेज़ी से जारी कर दिया गया। टाउन ऑफिसर जुल्फ़कार अली चना ने टाउन की मुख्तलिफ टीमें तश्कील देकर शहर से सफाई करने और आवारा कुत्तों की तल्फी की मुहिम जारी कर दी। इस मौका पर शहरियों की जानिब से शहर के अंदर होने वाले काम पर खुशी का इजहार किया। इस सिलसिले में टाउन ऑफिसर मिठियानी जुल्फ़कार अली चना का कहना था कि टाउन की बेहतरी और आवाम के मसाइल को अपना फ़र्ज समझ रहे हैं। हमने पहले भी टाउन की आवाम के मसाइल के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जिसकी मिसाल होने वाली बरसातों में शहर के रोड रास्तों पर पानी था, लेकिन हम दिन रात मशीनरी को चलाकर पानी निकाल लिया। इस तरह इस वक्त भी एक हर वक्त अमला कुत्तों की तल्फी और शहर की सफाई के साथ मच्छर मारने के लिए मुहिम जारी कर दी गई। मज़ीद कोशिशें जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, KC न्यूज़ मिठियानी से। खबर शामिल करते हैं कोयलों से, जहां नेशनल प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी माली जान मरी, फिनांस सेक्रेटरी मूसा जान मरी, ऑफिस सेक्रेटरी इखलाक मरी लेविस लाइन कोयलों में मेजर रासिलदार शेर मोहम्मद मरी से मुलाकात की। जी नाजरीन, आपको बताते चले कि नेशनल प्रेस क्लब कोयलों के ओहदेदार ने मेजर रासिलदार शेर मोहम्मद मरी से मुलाकात करके इलाकाई मसाइल पर बातचीत की, जिस पर मेजर रासिलदार शेर मोहम्मद मरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमन व अमान की बरकरारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। सहाफ़ियों का ताउन हमेशा ताउन रहा है और आइंदा भी इस ताउन की उम्मीद रखते हैं। हम सबका मकसद शहरियों की खुशहाली है। रिपोर्टर इखलाक अहमद मरी, KC न्यूज़, कोयलों। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चले हैरो खान से। वज़ीर आज़म इमरान खान के एहसास कफालत प्रोग्राम में मज़ीद फ्रॉड स्कैंडल सामने आ गए।
جوہی کی مسمات ہمواز وجہ غلام قادر لغاری کی رقم نکالنے کے ساتھ مزید 2 غریب بیوہ نادرہ خواتین سفوروں شناختی کارڈ نمبر 41202 31929876 کے اکاؤنٹنٹ اور مسمات صاحبہ خاتون شناختی کارڈ نمبر 41202 93220022 سے رقم فراڈ کے ذریعے نکالنے کا انکشاف ہوا ہے۔ نادرہ غریب بیوہ خواتین کے احساس کفالت پروگرام میں دادو ضلع کے اندر کروڑوں روپے فراڈ کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف فرنچائز دکاندار HBL کانٹیکٹ میئر خیرپور ناظرین شاہ کی انتظامیہ کی ملی بھگت سے 3000 سے زائد مردہ اور زندہ خواتین کے شناختی کارڈ نمبروں سے اکاؤنٹنٹ سے کروڑوں روپے نکالنے کا راز فاش ہونے کے باوجود ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی بجائے حصہ پتی کمیشن پر تحقیقاتی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تحصیل خیرپور ناتھن شاہ مہر کے فرنچائز مالکان نے فراڈ کے ذریعے رقم نکالنے کا انکشاف ہوا۔ متاثرہ خواتین ورثہ نے بتایا کہ فرنچائز مالکان HBL کانٹیکٹ افسران کی ملی بھگت سے سینکڑوں خواتین رقم کے حاصلات کے لیے HBL کانٹیکٹ دفتروں کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں، رقمیں نکالنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دوسری جانب ضبط کے ایک برس سے احساس کفالت پروگرام میں رقمیں نکالنے کے فراڈ کے باوجود فیڈرل انویسٹیگیشن دادو افسران کی نااہلی سے وزیر اعظم عمران خان کی عوامی بھلائی پروگرام فراڈ کرپشن کے خلاف متاثرہ خواتین کے ورثہ نے چیف جسٹس پاکستان وزیر اعظم عمران خان چیئرمین احساس کفالت پروگرام HBL انتظامیہ سے نوٹس تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں یاسر خان، KC نیوز خیرو خان سے۔ خبر شامل کرتے ہیں حاجی پور سے، جہاں جام انٹرپرائز ہونڈا ایجنسی حاجی پور کی افتتاحی تقریب گزشتہ روز منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی جام محمد سلمان بڑا نے جام ہونڈا ایجنسی کا افتتاح کیا اور دعا مانگی۔ اس موقع پر معززین علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حاجی پور شریف اور گرد و نواح کے لوگوں کے لیے بڑی سہولیت میسر ہو گئی، اب کسی اور شہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہونڈا کمپنی کے نیو موٹر سائیکل، جینین پارٹس، تجربہ کار مکینک ایک ساتھ ملیں گے، جبکہ پروپرائٹر شاہد عدیل بٹھا جام شاہد سلمان بڑا نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ تقریب میں جام محمد اکمل بڑا، ملک مرید حسین منہاس، SHO تھانہ حاجی پور شیخ فاروق آفاق، SHO لال گڑھ فاروق احمد خان، SSHO تھانہ ہرند نصر اللہ بزدار، نواب اسماعیل خان بھٹا، ڈاکٹر احمد نواز خان، ملک ارسلان آفتاب بکر، جام وزیر احمد بڑا، سیٹھ عبدالمجید خان دستی، حنیف بٹ، جام کریم نواز محسر، سردار بورل خان میہا، نواز شریف بلانی، خالد خان رشک، عبدالغفار خان چنگ اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی اور مبارکباد بھی پیش کی۔ رپورٹر فہیم ملک، KC نیوز حاجی پور۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں بہاول نگر سے ڈپٹی کمشنر محمد شعیب خان جداون نے کہا کہ پولیو کی بیماری کے خاتمے کے لیے والدین کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ حکومت پولیو کی بیماری کے خلاف تمام تر اقدامات کر رہی ہے، ہر بچے کو پولیو کی ویکسین پلانا ہمارا فرض ہے۔ آج بہاول نگر میں ایک نجی ہال میں منعقدہ انسداد پولیو ڈینگی سیمینار سے خطاب کر رہے تھے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع بہاول نگر پولیو فری ہے، لیکن ہم نے قومی سطح پر اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ یہ بیماری بچوں کے لیے عمر بھر کی معذوری کا باعث بنتی ہے۔ والدین کی غفلت عمر بھر کا روگ بن سکتی ہے، لہٰذا تمام والدین، معاشرے کا ہر فرد اپنا فریضہ ادا کرے اور اس نیشنل کاز کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں۔ اس موقع پر CEO ہیلتھ ڈاکٹر وحید افضل باجوہ، نمائندہ WHO ڈاکٹر شجاعت و طبی ماہرین متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ سیمینار میں بتایا کہ 21 ستمبر سے 23 ستمبر کے دوران پولیو مہم جبکہ کیچ اپ ایکٹیویٹی 24 سے 25 ستمبر تک کی جائے گی۔ ضلع بھر میں 5 سال تک کی عمر کے لیے 5,20,180 بچوں کو حفاظتی ویکسین دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر 1323 ٹیمیں فرائی سر انجام دیں گی اور ان میں 126 فکس، 1116 موبائل اور 81 ٹرانزٹ ٹیمیں شامل ہیں۔ سیمینار میں بتایا گیا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ٹیموں کو فیس ماسک،
सैनिटाइजर मुहैया किए जाएंगे। सेमिनार के दूसरे सेशन में इंसदाद डेंगू के इक़दामात के मुतालिक डिप्टी कमिश्नर शुएब जदावन ने अपने खिताब में कहा कि गुज़श्ता बरस की निस्बत डेंगू कंट्रोल में है, ताहम हमें तसाहिल से काम नहीं लेना। इंसदाद डेंगू के लिए हर मुमकिन काविश पूरे दिल जमाई और यकसुई से जारी और सारी रखनी है। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि हुकूमत डेंगू से बचाव के लिए संजीदा और मरबूत इक़दामात बरोएकार ला रही है। सूबाई सतह पर मुसलसल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। डेंगू के लिए सफाई को यकीनी बनाना, मच्छरों के ब्रीडिंग साइट्स का खात्मा तदरीक लाजमी है। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि ज़िले बहावलनगर को डेंगू से महफूज बनाना हमारा मिशन है। इसके लिए अवामुन्नास में शऊर बेदार करना बेहद ज़रूरी है ताकि डेंगू के सदेबाब मौसर अंदाज में किया जा सके। सेमिनार में बताया गया कि महकमा सेहत की 118 आउटडोर 626 इंडोर टीमें फील्ड में मजमूई तौर पर 1978 हॉट स्पॉट्स की कवरेज के लिए काम कर रही हैं, जबकि दीगर महकमों के एंड्रॉइड्स यूजर्स व इंसदाद डेंगू के लिए एक्टिविटी जारी रखे हुए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं खिजर हुसैन क्रीमी, केसी न्यूज़ बहावलनगर। खबर शामिल करते हैं तहसील दर्ग से। ए रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, दिन भर की मुशक्कत से बदन टूट रहा है। आज मजदूरों ने दर्ग अड्डा पर एहतजाज किया। एहतजाज की खबर सुनते केसी न्यूज़ की पूरी टीम नौजवान सहाफ़ी कामरान जाफर के साथ मौके पर वहां पहुंच गई। मजदूर भाइयों का कहना था कि हमारी मजदूरी 2 के अंदर बढ़ा दी जाए। अगर हमारी मजदूरी ना बढ़ाई गई तब तक हम तहसील दर्ग में मजदूरी से बाइकआउट का ऐलान करते हैं और हम एहतजाज पर रहेंगे। मजदूरी का हक दर्ग के मजदूरों का बनता है। अगर किसी भी ठेकेदार ने बाहर से लेबर मंगवाई तो याद रहे हम उन्हें भी काम से रोक देंगे। और मजदूर भाइयों का ये कहना था कि कम टाइम में हमसे ज्यादा काम लिया जाता है, जो कि जुल्म की इंतहा है और मजदूरी भी इंतहाई कम है। अगर दर्ग में मजदूरों की मजदूरी ना बढ़ा दी गई तो उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर मजदूरों ने एहतजाज केसी न्यूज़ से रिकॉर्ड करवाया। कैमरामैन टीम के साथ कामरान जाफर, तहसील दर्ग। जी नाज़रीन, आपको बताते चले नौशहर फिरोज से सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करने वालों पर अब तक कोई एक्शन ना लिया गया, जिसकी वजह से आज मोरो शहर में बाद नमाज जुमा सुन्नी राब्ता कौंसल मोरो की तरफ से एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मुकर्ररीन मौलाना सफ़ीउल्लाह हैदरी, मौलाना नसीर अहमद रहनुमा मरकज़ी जमात अहले हदीस मोरो ने खिताब करते हुए कहा, गुज़श्ता आयाम में कराची और इस्लामाबाद में हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हो की शान में इंतहाई गुस्ताखाना अल्फाज रोडों और चौकों पर कहे गए, जिससे आलम इस्लाम के तशख़्ख़ुस को पारा पारा किया गया, जिसके बायस अहले सुन्नत वल जमात मोरो के मुख्तलिफ तंजीमों ने एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म से एहतजाज रिकॉर्ड करने का लह अमल तैयार किया। लेकिन बदकिस्मती से चंद रोज़ कबल मोरो शहर में चंद इंतशार फैलाने वाले अनासिर ने अपनी फेसबुक ID पर सहाबा इकराम के खिलाफ शदीद तरीन गुस्ताखी की, जिसकी बर वक्त मोरो को इतला दी गई और 18 सितंबर बरोज़ जुमा को मुश्तरका मुत्तहिदा सुन्नी कौंसल मोरो के प्लेटफॉर्म से एहतजाज तय पाया था। लेकिन इंतज़ामिया मोरो मीटिंग करके अंदिया दे दिया कि हालिया गुस्ताखियों के बाद अगर कोई नई गुस्ताखी की तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिसके बायस तय किया कि एहतजाज मुलतवी किया। लेकिन रात को देर से पता चला कि अस्मत सहाबा अहले बैत रैली इस्लामाबाद के शुरका की वापसी पर त्रिटमरी के मुकाम पर शरपसंदों ने हमला किया, जिसकी वजह से 4 शहादतों और काफ़ी ज़ख्मी अफराद की इतलात हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस्लामाबाद में हमला करने वाले दहशतगर्दों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक सज़ा दी जाए। मोरो इंतज़ामिया से मुतालबा है कि तयशुदा मामलात के बाद शरपसंदों की शरअंगेज़ी पर फौरी एक्शन लेकर कानूनी कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर अली मशहूरी, केसी न्यूज़। खबर शामिल करते हैं कलातिक केस से, जहां तुरबत इंसदाद मुंशियात कमेटी UC कलातिक डप के सरबरा मीर जफरन ने अयूब नाली अकरम गचकी ने आज तहसीलदार तुरबत से मुलाकात करके इंसदाद मुंशियात कमेटी के हवाले ब्रीफिंग दिया। हमें हर हवाले में सहूलियात फराम करें और मुंशियात के आदियों का इलाज किया जाए। और साबका लेवेज मेजर मोहम्मद रहीम ने कमेटी के मेंबरों को यकीन दहानी कराई कि हर वक्त ऐसे कामों में आप लोगों के साथ हों।
नाजरीन, आपको आगाह करते चलें कि डब के सरबराह मीर जफर अयूब नाली अकरम गचकी ने आज तहसीलदार तुर्बत से मुलाकात करके इंसदाद मुंशियात कमेटी के हवाले से ब्रीफिंग दी कि हमें हर हवाले में सहूलियात फराम करें और मुंशियात के आदियों का इलाज किया जाए। और साबका लिवीज मेजर मोहम्मद रहीम ने कमेटी के मेंबरों को यकीन दहानी कराई कि हर वक्त ऐसे कामों में आप लोगों के साथ हों। रिपोर्टर शेब गनी, केसी न्यूज़, तुर्बत केच, बलोचिस्तान। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें केसी न्यूज़।